The title of this chapter is Structure and Layout of Report. कि रिपोर्ट्स को किस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है. इससे पहले हमने देखा है कि लेटर्स का एक स्पेशल फॉर्मेट है, उसके मुताबिक हम उसको कंपोज करते हैं. Reports also are supposed to be within certain structural layout. What is this? Let's see. A good look reflects the mind of the matter. किसी भी चीज का mind reflect करती होती है उसकी look. You go to a room, the decoration or the overall makeup of that room will reflect the real spirit of the person who lives in that room. किसी भी room में अगर आप जाएं तो उसकी decoration या उसमें उसकी तरतीब आपको बताएगी कि इसमें रहने वाले का दिमाग किस तरह चलता है. अगर वो chaotic किस्म का और dismembered किस्म का उसका सेटअप है तो उससे पता चलेगा कि इसमें रहने वाला शख्स जो है वो भी एक disorganized किस्म का इंसान है. But if it is well decorated, properly placed, and properly well kept off, you would certainly guess that the mind and manners of the person living in this room are organized minds and spirit. Similarly, report का भी जो overall style is actually complementing the matter or content of your thing. जिस तरह कोई भी आप किचन में कोई चीज बनाए, खाने वाली चीज, तो अगर उसकी प्रेजेंटेशन मिसिंग है या लैकिंग है, in spite of its good taste, people would say that its presentation was not good. The form and content are complementary. That only the voice was good, but the presentation was not good. But if presentation and voice are both good, you would say that things were excellent. Similarly, in writing, your content and form should both be good. Chapter objectives: to describe the various elements of the structure of a report and to provide detailed guidance on how to write them. उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है रिपोर्ट की और डिटेल गाइडेंस ऑन हाउ टू राइट देम, रिपोर्ट्स किस तरह लिखी जाती है. कम्युनिकेशन कोर, इस चैप्टर का कोर या इसका जो सेंट्रल आइडिया वो ये है. The elements that constitute the report have been standardized by convenience and convention. आसानी को मद्देनजर रखते हुए और रवायत को मद्देनजर रखते हुए हमेशा रिपोर्ट्स को मखसूस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया गया है. Variations are, however, made to suit specific requirements of the organization in which they are written. कभी कभार सहूलत को ध्यान में रखते हुए तब्दीलियां की जाती हैं. Page acknowledgements, table of contents, list of illustrations, symbols, abstract, introduction, discussion and description, conclusions, appendices and list of references. ये कुछ चीजें हैं जो कि उसका constituent parts हुआ करती हैं. इनमें रद्दोबदल हो सकता है. These are things again, right? Contents, list of illustrations and symbols, abstract, introduction, discussion or अगर आप रहे हैं या याद आएगा कि ये सारी चीजें एक रिसर्च पेपर के अंदर भी हुआ करती है. उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका टाइटल होता है, उसका एक कवर होता है, उसमें मौजूद डिस्कशन पार्ट्स हुआ करते हैं, कंक्लूजन होता है एंड फाइनली जिसे ग्लोसरी कहा जाता है उसको आप अपेंडिसेस भी कहते हैं इसके अंदर, एंड लिस्ट cited list या bibliography कहते हैं. So if you haven't ever written a research paper, you should at least be familiar with at least these titles. कि भाई किसी भी रिसर्च पेपर में या रिसर्च रिपोर्ट में या इकाम रिपोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं. कोई भी आम बुक आप उठाएं उसमें भी आपको एक कवर पेज मिलेगा, एक टाइटल पेज मिलेगा, उसके साथ आपको कंटेंट पेज मिलेगा, प्रेफेस मिलेगा शुरू में, और नेक्स्ट अगर आप पेज चलाएं तो आपको उसके अंदर डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर इन अ रिसर्च पेपर, इन अ बुक एंड आल्सो इन अ रिपोर्ट. इफ इट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट, कंटेंट्स पेज जो शुरू का पेज होता है जिसमें आपको पेज नंबर 1 से लेके 20 तक इंट्रोडक्शन मिलेगा, 21 से लेके 29 तक आपको फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद फॉलोइंग ऑन एंड ऑन अप टिल चैप्टर 10
you will find the complete book. Similarly, report भी अगर detailed report है तो उसमें मुख्तलिफ content वाला पेज मिलेगा और अंदर body of the book के अंदर respective chapters मिलेंगे अगर वो detailed report है. If it is not a detailed report, it only constitutes of 10 pages or less, you will not find table of contents as such. Introduction, discussion, or description. If there is a need, the following elements may also be included, and what these are those: frontispiece, copyright, notice, forwarding letter, conclusions, recommendations, bibliography, glossary, and index. कभी कभार ये चीजें भी उसमें शामिल होती हैं. Frontispiece is a new term. I have never ever heard about this term. So this is frontispiece, copyright notice. Copyright notice में ये होगा कि ऊपर disclaimer दिया गया होगा कि the contents of this book cannot be copied or distributed without permission of the author. जो अक्सर आपको अक्सर मूवीज के शुरू होने से पहले भी एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस मूवी में मौजूद तमाम कैरेक्टर्स फर्जी हैं और इसके कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना या सेल करना विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर इज अ क्राइम. उसको कॉपीराइट कहते हैं. अगर आप नई बुक शाया करें उसके भी आपके पास कॉपीराइट्स होते हैं. नोबडी कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड गेन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ दैट बुक. कोई सीडी भी हो सकती है और कोई भी ऐसा कंटेंट. आपका डिसर्टेशन भी ऐसी ही चीज है. Conclusions, recommendations, bibliography, glossary, and index. The inclusion of an element is determined by the purpose and scope of the report as well as by the prevalent practice in the organization. And contributes to the cumulative value of the report. हर एलिमेंट जो आप उस रिपोर्ट के अंदर शामिल करेंगे उसका एक मखसूस मकसद होगा. कुछ चीजें आप शामिल कर सकते हैं, कुछ चीजें आप शामिल नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस में ये हो सकता है कि अगर आपने उसके अंदर कोई फोटोज दी हुई है या डायग्राम्स या फिगर्स दी हुई है तो फिर आप उसको मेंशन करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि आपने ये कहाँ से उठाई हैं और कहाँ क्या इसका सोर्स है. बट नॉट ऑल रिपोर्ट्स, नॉट ऑल बुक्स, नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स कंटेन फिगर्स एंड इलस्ट्रेशंस. हेंस इट इज kind of optional, not mandatory. Custom and convenience have more or less standardized the parts or elements that constitute a report and also established the sequence in which they appear. रवायत और आसानी ने हमेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हुए कि एक आम रिपोर्ट किस स्टाइल में लिखी जाएगी, उसके कौन कौन से पार्ट होंगे. Variation in structure are however made according to the purpose, scope and contents of a report. कभी कभार तब्दीली जो है वो आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक करते हैं. Elements of structure. किसी रिपोर्ट की स्ट्रक्चर या उसका फ्रेमवर्क जो है वो क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी. Custom and convenience have more or less standardized the parts or elements that constitute a the applications and structure are however made structure. Elements are collectively termed as front matter because they appear before the main body. पहला front matter आता है जो आपका main body से पहले आएगा. This is called front matter. The order in which various elements are organized is given below. The first 10 elements are collectively termed as front matter. Front matter में 10 elements शामिल हैं because they appear before the main body. The first 5 are known as the last 5 are known as the back matter because they follow the main body. आखिरी 5 जो है वो मेन बॉडी के बाद आते हैं. फ्रंट मैटर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. अगेन रिमेंबर अ बुक. अगर आप कोई बुक देखें या कोई जर्नल आर्टिकल देखें तो उसमें ये चीजें पाई जाएंगी. नंबर 1 कवर, पहला पेज, सर वर्क जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में कवर. नंबर 2 फ्रंट पीस. नंबर 3 टाइटल पेज. 4 कॉपीराइट नोटिस, इस किताब के कंटेंट्स का मालिक जो है वो ऑथर है और इसको उसकी परमिशन के बगैर डिस्ट्रीब्यूट करना क्राइम है, कॉपीराइट्स की वायलेशन है. Number 5 forwarding letter. If you are writing a report, you have to put in forwarding letter in front after the copyright note. Preface में आप उसके अंदर उसका introduction type देंगे कि भाई ये पहला पैराग्राफ है इसका, इसको बोलते हैं preface.
एक्नॉलेजमेंट, अगर आप किताब में जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है या इमोशनली या फिजिकली कंट्रीब्यूट किया है तो आप उनको एक्नॉलेज करेंगे. फॉर एग्जांपल अक्सर बुक में लोगों ने अपने बीवी बच्चों को एक्नॉलेज किया होता है कि भी दे हेल्प मी अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग देयर गुड कंपनी एंड बेयरिंग विद माय बिजी स्केड्यूल. तो यूजुअली एक्नॉलेजमेंट्स आर गिवन. और अगर किसी स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया हो तो आप उसको भी एक्नॉलेज करेंगे कि भी उसने डेटा इकट्ठा करके दिया मुझे. नंबर 8, टेबल ऑफ कंटेंट्स. दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर इन एवरी बुक. कोई भी किताब आप खोलें उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको दूसरे तीसरे पेज पे मिलेंगे. ये किताब इसमें से हम पढ़ रहे हैं 223 नंबर पेज में. मैं सबसे पहले आने से पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया और मैंने देखा कि 18वां चैप्टर जो है वो किस पेज के ऊपर है. एंड table of contents actually provided me the access to this 222nd and 223rd page. So table of contents में आपको chapters के नाम, page numbers और respective सब headings जो है वो मिलते हैं. नंबर 9, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस. अगर आपने कोई फिगर्स दी हुई हैं या कोई डायग्राम्स प्रोवाइड की हुई हैं तो आपने उसके नंबरिंग की होगी कि भी फलां बुक के ऊपर फलां डायग्राम मौजूद है, तो यू विल प्रोवाइड इट अप देयर एट नंबर 9. एंड नंबर 10, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी. एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी क्या होती है? ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट. अगर वो रिपोर्ट है तो आप उसको जब कंप्लीट लिख लेते हैं तो लिखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट समरी लिखते हैं ताकि उसका नफ्स मजमून आप शुरू में दे दें, ताकि कोई शख्स बजाय इसके कि पूरी किताब पढ़े या पूरी रिपोर्ट पढ़े वो उसका एब्स्ट्रैक्ट और समरी पढ़ के अंदाजा लगा ले कि इसके अंदर क्या है. रिसर्च आर्टिकल्स जो कि साइंस में और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में लिखे जाते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी हर आर्टिकल की दी जाती है शुरू के अंदर. चैप्टर वाइज समरी भी होती है लेकिन यूजुअली द एंटायर डिसर्टेशन इज प्रोवाइडेड with an abstract. If you go to Leiden University website, my own doctoral dissertation also is available over there on their repository, and you will find a complete abstract of my dissertation up there on their website. जो पूरा डिसर्टेशन जिनको पढ़ने का इतना शौक है ना टाइम है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे डिसर्टेशन के अंदर क्या है. Then comes the main body. Main body के अंदर ये constituent parts है. Number 1, introduction. Number 2, discussion or description. And number 3, conclusion. And number 4, last is recommendations. ये भाई रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपका मामला क्या है, आप किस चीज की रिपोर्ट दे रहे हैं. उसके बाद डिस्कशन लिखेंगे उसके अंदर कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हमने ये इन्वेस्टिगेशंस की, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है और ये हम चीजें जो है ऑब्जर्व करके आए हैं. फाइनली यू विल प्रोवाइड अब कंक्लूजन कि भाई इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है. तो क्राइम की रिपोर्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आप पूरी क्राइम की डिस्क्रिप्शन देंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि भाई ये वकूआ पेश आया. एंड फाइनली रिकमेंडेशंस, जिसको आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रिपोर्ट की रोशनी में आप रिकमेंडेशंस देंगे कि रिपोर्ट की रोशनी में हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन ये लिया जाए. That's how you are supposed to. And finally, you go back to the second half of your report, which is called back matter. बैक मैटर के अगेन आपको 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे जो उन्होंने शुरू में बताया हुए. नंबर 1, अपेंडिसेस. अपेंडिसेस में वही लिस्ट of things that are there in the book or in the report. 16, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. रेफरेंसेस ये कि जो सोर्सेज आपने कंसल्ट किए हैं उसकी आपने या साइट किए हैं उनके रेफरेंसेस, ब्रीफ रेफरेंसेस आपने देने. दे इन रिसर्च वी कॉल देम एंड नोट्स और फुट नोट्स. यूजुअली अगर आखिर में रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं तो उनको हम एंड नोट्स कहते हैं. एंड देन बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी से मुराद होती है वो तमाम टेक्स्ट और सोर्सेज जो कि आपने वो रिपोर्ट लिखने के दौरान कंसल्ट किए हैं और यूज किए हैं. अगर आपने एक रिपोर्ट लिखी है जो कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर है तो आपने मुख्तलिफ सोर्सेज कंसल्ट किए हैं. अगर आपने फॉर एग्जांपल कोविड-19 के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है और उसका लाहौर के ऊपर इफेक्ट ओवर द लास्ट 1 ईयर अगर आपने असेस किया है तो आप डेटा भी लेंगे जो कि टेलीविजन से भी हो सकता है, हॉस्पिटल से भी हो सकता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं. तो ये एक लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रेफरेंसेस है, सोर्सेज है. तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस जब आप साइट करेंगे या सोर्स करेंगे तो आपने इनको अपने रिपोर्ट के आखिर में लिस्ट की सूरत में रेफर करना है. इफ यू लुक एट एनी आर्टिकल और अ जर्नल आर्टिकल आप उसमें देखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन होता है शुरू में और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, डिस्कशन
and finally conclusion, and up there in the end you find references, and last but not the least work cited list और bibliography. Bibliography से मुराद होता है किताबें, वो किताबें जो कि आपने कंसल्ट की है. तो अगर आपको बतौर स्टूडेंट्स, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखने का कहा जाता है आखिर में, तो आप रिपोर्ट में टेक्स्ट को रेफर करेंगे. बिजनेस रिपोर्ट अगर आप लिखते हैं तो आप उसमें टेक्स्ट और फील्ड रिसर्च जो है, जो आपने की और जहां जहां गए, उसको आप रेफर करेंगे कि आपका ये सोर्स आपने कंसल्ट किया, उसकी बेस पे आपने ये रिपोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है. रिपोर्ट्स फिक्टिशियस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आपने कहानी बना के नहीं पेश करनी, बल्कि एक्चुअल डेटा की बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करनी है. अगर आपको लाहौर की सुपरमार्केट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो यू विल गो टू दो सुपरमार्केट्स और deal with data or publish data on that on those supermarkets, and only then you'll be able to write your own report. So consulting with actual data is mandatory for your research. So, all right. So these are the constitutional elements which are 28. 19. पहले 10 कंटेंट फ्रंट मैटर, उसके बाद मेन बॉडी और फाइनली द बैक मैटर. 10 चीजें शुरू में आपने देनी है रिपोर्ट के, उसके बाद आपने चार चीजें रिपोर्ट की, क्योंकि रिपोर्ट की बॉडी या उसका पेट उसका यही पार्ट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन होगी, कंक्लूजन होगा, रिकमेंडेशन होगा. जबकि ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं 15 चीजें, ये लगती बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ छोटा मोटा काम है जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, फ्रंट पे कवर देना है, फ्रंट पीस देना है, टाइटल पेज देना है, कॉपीराइट नोटिस देना है, कॉल लेटर देना है. जिस तरह आप एक डिसर्टेशन या थीसिस लिखते हैं तो उसकी बाइंडिंग आप आखिर में करवाते हैं, कवर पेज आखिर में छापते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आखिर में लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स भी आखिर में, लिस्ट भी आखिर में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इसी तरह रिपोर्ट में भी मेन चीज या बॉडी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस, यू राइट देम फर्स्ट एंड राइट एब्स्ट्रैक्ट समरी लिस्ट ऑफ द एंड. क्योंकि ये हार्डली 6 से 7 पेजेस की गेम है. असल गेम ये है रिपोर्ट के अंदर. अगर आप 20 पेजेस की रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें 17 पेजेस या 16 पेजेस जो है वो रिपोर्ट की बॉडी होगी, मेन बॉडी होगी, जबकि बाकी के 2, 3, 4 पेजेस जो है वो फ्रंट पेजेस और बैक मैटर होगा. राइट? So this is basically the structure of a report. Of the above elements, only the title page. Of the above elements, only the title page, the introduction, and the discussion or description are obligatory. Of the above elements, only the title page, the introduction, and the discussion or description are obligatory. किसी भी रिपोर्ट में बाकी चीजें शायद उतनी जरूरी ना हो, लेकिन टाइटल पेज, कोई भी रिपोर्ट अगर आप बगैर टाइटल के किसी बड़े अफसर के सामने रख देंगे तो वो कहेगा एक ही बिंदु दे देता है. What is this? You haven't given us a title, so why should I read this whole manuscript without knowing what it is all about? So you must provide the title first and introduction. Usually people do not have enough time, so they only go through the title and the introduction. Introduction से उन्हें पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में. रिपोर्ट रीडिंग या फाइल्स की रीडिंग भी एक स्किल है. People do not go through files in hours or days. They go through those files within minutes. और उसमें वो की चीजें देखते हैं कि टाइटल पेज क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, फाइनली इफ दोस रिपोर्ट्स आर रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग दे गो टू द डिस्कशन एंड डिस्क्रिप्शन इन डिटेल. So title page, introduction and discussion and description are obligatory. Recommendations are usually not required in that case. In very short reports, even a separate title page is not necessary. छोटी reports में 3-4 pages की report में short जो title page है वो भी जरूरी नहीं है, वो आप टाइटल के साथ इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. All you need to do is to write the title on the top of the first page and start with the introduction. In particular, only long formal reports are likely to contain all the elements. Long formal reports जो कि 25-25, 30, 40 सफ़ों की होती हैं, उनमें आपको सेपरेट पेजेस की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं वो अक्सर जब रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उनकी, तो वो तवील रिपोर्ट्स होती है. जिस तरह मॉडल टाउन सानेहा, उसकी रिपोर्ट आज तक कहीं सामने नहीं आई क्योंकि वो डिटेल्ड है और बड़ी सीक्रेटिव है
और उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल फिगर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से nobody has ever got an access to that report. Mahmood Rahman Commission report एक बड़ी famous report है. Nobody has as such gone through that report, but it has some key national secrets in it. इसी तरह डिटेल्ड रिपोर्ट्स में आपको सेपरेट पेजेस बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट आर एक्चुअली आर्टिकुलेटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर. आपको कवर पेज देना होगा, एब्स्ट्रैक्ट देना होगा, टाइटल देना होगा, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस देने होंगे आखिर में, और शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स देना होगा, प्रेफेस देना होगा, ये तमाम चीजें, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी and what we call glossary or index list must also be provided. All you need to do is to write the title on the top of the front page and start with this introduction. In practice, only long formal reports are likely to contain all the elements. The primary consideration for कभी कभार डिटेल्ड फैसले या डिटेल्ड रिपोर्ट्स आती है तो 9 सफ़ों की भी हुआ करती है, मोटी रिपोर्ट. जिस तरह पनामा की रिपोर्ट जो है वो आई थी तो वो कई जिल्दों पर मबनी थी, तो इसी तरह ये भी. In practice, only long formal reports are likely to contain all the elements. The primary consideration for including an element should be its usefulness. किसी भी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने या इंक्लूड करने का सबसे बड़ा लेजिटिमेट रीजन ये होना चाहिए कि वो यूजफुल है कि नहीं, क्या रेफरेंसेस देना जरूरी है कि नहीं. अगर जरूरी नहीं है तो आप नहीं देंगे. इंक्लूडिंग एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट नीडेड वुड मेक योर रिपोर्ट अननेसेसरीली बल्की एंड इम्पीड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपकी रिपोर्ट में अननेसेसरी डिटेल्स मौजूद हैं और पेजेस मौजूद हैं तो इससे आपकी रिपोर्ट मोटी हो जाएगी और उसका कोई फायदा कोई नहीं है, और उससे पढ़ने में देर लगेगी, उससे फिर कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा. What we have given above is the order of appearance and not the sequence of writing which is discussed in chapter 34. Chapter 34 में जो आएगा इससे 16 चैप्टर्स बाद वो है उसकी सीक्वेंस ऑफ राइटिंग which is discussed in chapter 34. उसके बारे में हमने बात नहीं की अभी तक. हमने सिर्फ उसके फॉर्म के बारे में बात की है, स्ट्रक्चर ऑफ एन अपीयरेंस ऑफ रिपोर्ट के बारे में बात की कि उसके अंदर जो आपने जो अहाता करना है चीजों का वो किन किन हेडिंग्स के अंदर करना है. Another point to remember is that all the terms used to describe elements do not appear as headings or subheadings in a report but have been listed here only for the convenience of the reader. ये तमाम चीजें appendices, list of references और particularly ये part within the report, introduction, discussion, description, conclusion, recommendations आप headings के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन only for the sake of convenience this is told here that a report should contain introduction, should contain discussion, should contain conclusion, should contain recommendation. For example, when you were students in your schools and you wrote essays, you would always give headings with blue marker or black marker most of the time. But as you grew up and you came to your FA, FSC or higher studies and you wrote essays, you skipped those headings because it was implicit and there was an understanding between the examiner and the examinee that this part would obviously be the introduction and this middle part would obviously be the discussion part and this part would obviously be the conclusion part. Similarly, एक रिपोर्ट के अंदर आप जब शुरू के पार्ट से पढ़ते हैं बतौर एग्जामिनर या बतौर बॉस तो आप उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे, और दरमियान का पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो डिस्कशंस या डिस्क्रिप्शन के तौर पे पढ़ेंगे, फाइनली जब कंक्लूजन के पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये कंक्लूजन. तो यू नीड नॉट प्रोवाइड हेडिंग्स लाइक इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन. आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर में अपेंडिसेस, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी इसकी हेडिंग्स देना जरूरी है क्योंकि डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि ये ग्लॉसरी है, ये बिब्लियोग्राफी है, ये इंडेक्स है और ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है. रिसर्च में हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स अक्सर यही करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन का टाइटल दे के उसके नीचे इंट्रोडक्शन देंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू का टाइटल दे के उसके नीचे 2 सफ़ों का लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, फिर डिस्कशन का टाइटल दे के उसके नीचे डिस्कशन देंगे तो 14-15 सफ़ों की. बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस लुक्स रादर इमेच्योर टू प्रोवाइड headings and then write. अभी तक की आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी अगर आप सुन रहे हैं.
Another point to remember is that all the terms used to describe elements do not appear as headings or subheadings in a report but have been listed here only for the convenience of the reader. For example, it would be absurd to give in a report a subheading such as cover or title page, or to designate a certain part of the report as main body or main text. Although the discussion here is in the context of report writing, it is generally applicable to other formal writing such as articles, research papers, monographs, books, etc. जो बात मैं शुरू में कर चुका हूँ कि ये तमाम formats other formal styles of writing में भी कारआमद है. अगर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट या प्रोफेसर हूँ और मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखूंगा तो मैं भी यही तमाम स्ट्रक्चरल हेडिंग्स या पार्ट्स को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करूंगा. अगर मैं आर्टिकल लिखता हूं तो उसका कवर पेज होगा, अगर मैं आर्टिकल लिखता हूं तो उसका इंट्रोडक्शन होगा, अगर मैं आर्टिकल लिखता हूं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट होगा, कीवर्ड्स होंगे, उसका मुझे लिटरेचर रिव्यू लिखना होगा, डिस्कशन मुझे करनी होगी, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन भी मुझे ड्रॉ करना होगा, फर्दर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशंस भी देनी होगी, फाइनली मुझे वर्क साइटेड लिस्ट भी प्रोवाइड करनी होगी, उससे पहले एंड नोट्स भी देने होंगे. So these constituent parts are there in every formal style of writing. Reports are fairly similar to scientific research articles, research papers, monographs. Monographs होते हैं वो notebooks या वो books जो कि आप अकेले खुद लिखते हैं. जिस तरह अगर मैं PhD कैंडिडेट रहा हूँ तो मैंने अपने सुपरवाइजर की सुपरविजन में मैंने 4 साल काम किया, तो मैंने डिसर्टेशन लिखा जिसमें मेरे सुपरवाइजर की कंट्रीब्यूशन मोर देन 100% है, क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट किया, मुझे उसने एडवाइस किया कि इस तरह आपने लेके चलना है. लेकिन आफ्टर डॉक्टरेट इफ आई राइट माय इंडिपेंडेंट बुक विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनीबॉडी इंडिपेंडेंटली, दैट वुड बी अ मोनोग्राफ, क्योंकि वो मैंने खुद अकेले बैठ के लिखी है. जिस तरह मोनोलॉग होता है अपने आप से गुफ्तगू करना, डायलॉग होता है दो लोगों का आपस में बात करना, तो मोनोग्राफ होता है एक शख्स का अकेले कोई रिटन प्रोजेक्ट लिखना. दैट इज अ मोनोग्राफ व्हिच इज a fairly sizable text of approximately 100 pages or maybe more. And books are also written according to the rough formula of a report. Down there, front matter में जिसमें आपने 10 constituents देखे हैं, cover उसमें क्या होता है? A cover is usually made of white or some soft neutral colored card. जिस तरह आप कोई भी किताब खोलते हैं या कोई भी आप डिसर्टेशन या थीसिस देखते हैं तो उसका पहला पेज जो है वो थोड़ा सा डेंस पेज होना चाहिए. यूजुअली हमारे यहाँ A4 साइज का सेम पेज यूज कर दिया जाता है और उसके ऊपर मैक्सिमम लेमिनेशन या प्लास्टिक कवर डाल दिया जाता है ताकि वो सेव रहे और दूर से पता चल जाए कि ये कवर पेज है. लेकिन जिस तरह बुक का पहला सफा अगर पेपर बाउंड टेक्स्ट है तो वो जरा थिक होगा, बाकी सफे पतले पतले होंगे, लेकिन कवर पेज जो है वो थोड़े से थिक गत्ते वाले कागज का बनना होगा. तो इसमें भी किसी भी रिपोर्ट का पहला पेज जो है जिसे कवर कहते हैं यूजुअली मेड ऑफ वाइट और सम सॉफ्ट न्यूट्रल कलर्ड कार्ड का बना होगा. It protects the manuscript from damage and gives the report a neat appearance. और अंदर की किताब जो है उसकी वजह से प्रोटेक्टेड भी रहेगी. जिस तरह लाइब्रेरी की अगर आप कोई पुरानी किताब भी देखते हैं तो उसका कवर फटा फटा होगा, लेकिन अंदर के सफ़े बेशक पीले हो गए हों लेकिन वो सेफ होते हैं क्योंकि उसके ऊपर थिक कवर चढ़ा होता है. Some organizations have prepared covers which have their name and address printed on them. जिस तरह अक्सर डायरियां छपती हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनकी डायरियों का पहला पेज जरा थिक बनाया जाता है ताकि अंदर वाले पेजेस सेव रहें. All one has to do is to write or get type the title of the report. Title of the report आप उसके शुरू में एम्बोस करवाएंगे या राइट करवाएंगे. अगर आप थीसिस लिखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में सैकड़ों हजारों थीसिस लिखे जाते हैं एनुअली और वो थीसिस हार्ड बाउंड कॉपी में सेव किया जाता है लाइब्रेरी के अंदर, और वो हार्ड बाउंड टेक्स्ट जो है उसके ऊपर एम्बोस करवाया जाता है थीसिस का टाइटल, उसको आप कवर पेज भी कहते हैं. Similarly, the title of the report is put right up there on the top of that hardbound text. Number 2, its number, if any. अगर उसका कोई नंबर है तो वो भी देंगे. The date, and 4, the classification, secret, top secret, etc. अगर आपने रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट रखना है, जैसा मैंने मॉडल टाउन वाकये का बात की है, तो अगर वो रिपोर्ट लिखेगा कोई तो
उसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा जाएगा या कॉन्फिडेंशियल लिखा जाएगा. If any, these items of information help identify the report when it is in circulation or field. Sometimes the name of the author and the authority for whom the report is written are also mentioned. Sometimes the name of the author and the authority for whom the report is written are also mentioned. 5 मिनट 42 सेकेंड्स हैं, तो जिसका माइक चल रहा है काइंडली इसको ऑफ कर लें. जी माइक ऑफ कर लें, शोर आ रहा है. The cover gives the first impression and you should therefore not crowd it with information. शुरू का जो कवर है वो उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए. उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं दे सकते. अगर आपने कुछ थीसिस लिखा हुआ देखा है, थीसिस भी एक रिपोर्ट होती है, वो आपके रिसर्च की रिपोर्ट होती है. तो थीसिस के कवर पेज के ऊपर आप का टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके ऊपर टाइटल आपको मिलेगा और पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो मिलेगा और ईयर एंड रोल नंबर, बैच का ईयर या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलेगा या मैक्सिमम पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो मिलेगा और डिपार्टमेंट का नाम मिलेगा. दैट्स इट, नथिंग मोर. अगर आप उसमें और चीजें भर देंगे तो उस पर क्राउडिंग हो जाएगी. द कवर गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन एंड यू शुड देयरफॉर नॉट क्राउड इट विद इंफॉर्मेशन. Too many items are likely to distract the reader's attention and mar the attractiveness of its layout. बहुत ज्यादा चीजें अगर आप डालेंगे तो उससे उसकी अट्रैक्शन जो है वो मारी जाएगी और आप कहेंगे ये too many details है. The inside of the cover, of the front cover, and both the inside and the outside of the back cover are usually left blank. अगर आप हार्ड बाउंड टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसका बाहर वाला पार्ट जो है उसके ऊपर तो टाइटल होगा, लेकिन जो ही आप उसको खोलेंगे अंदर वाली साइड जो है वो ब्लैंक होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा. एंड द नेक्स्ट पेज नंबर 1 विल एक्चुअली हैव द कंटेंट्स. इसी तरह हार्ड बाउंड टेक्स्ट का आखिरी पेज भी खाली छोड़ा जाएगा अनलेस यू हैव सम रिव्यूअर कमेंट्स ऑन दैट. जैसा कुछ किताबों के बाहर रिव्यूअर्स के कमेंट्स होते हैं, किसी फेमस शख्सियत का उस किताब के बारे में रिव्यू होता है. The cover gives the first impression and you should therefore not crowd it with information. Too many items are likely to distract the reader's attention and mar the attractiveness of its layout. The inside of the front cover and both the inside and the outside of the back cover are usually left blank. Sometimes the inside of the front cover is used for indicating the circulation list. A sample cover is given in Exhibit 18.1. 18.1 में sample cover आपको मिल रहा है इस चीज का, एक रिपोर्ट का. टॉप सीक्रेट यानी ये एक रिपोर्ट है जो कि टॉप सीक्रेट है. रिपोर्ट नंबर उसका ये है 368. नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शहीद पर एयरवर्दीनेस ऑफ एरो 51 फाइटर्स. ये एयरफोर्स की एक रिपोर्ट है जो कि कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट है और उसमें एयरवर्दीनेस ऑफ एरो 51 फाइटर्स जेट्स जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये हवा में उड़ाए जा सकते हैं कि नहीं. अगर ये रिपोर्ट टॉप सीक्रेट ना हो, ना रखी जाए, तो इसका दूसरे मुल्क को भी हो सकता है और वो फिर इसका फायदा उठा के एम्बुश अटैक्स कर सकते हैं और उसका फायदा, दुश्मन की कमजोरी जो है वो एक्सपोज हो सकती है. ये रिपोर्ट है 4 अगस्त 2014 की. दिस इज देयर ऑन द फ्रंट कवर, नथिंग मोर इज प्रोवाइडेड देयर. एयरवर्दीनेस ऑफ एरो 51 फाइटर्स. हो सकता है इसके अंदर लिखा जाए कि नहीं है उसका काबिल कि उनको उड़ाया जा सकते. हो सकता है ये भी हो कि भाई 2014 में हम रिपोर्ट दे रहे हैं, ये अभी भी वर्दी ऑफ फ्लाइट है और 2020 तक ये उड़ाए जा सकते हैं. तो इट मे कंटेन एनीथिंग बट इट इज केप्ट टॉप सीक्रेट for the sake of security of army arsenal. Front piece. A front piece generally appears in bound reports, which are meant for wide circulation. It is a sort of window display that ignites the curiosity of the reader. The forms most often used for the purpose are photographs, maps, and artistic drawings. Title page क्या होगा इसके लिए? Usually the title page is the first right-hand page of the report. अंदर भी आपको टाइटल पेज मिलेगा कि जिसके अंदर मखसूस टाइटल दिया जाएगा. In addition to all the information given on the cover, it may contain the following information. Number 1, subtitle. अगर उसका कुछ subtitle एयरवर्दीनेस ऑफ एरो 51 फाइटर्स और उसका कुछ सबटाइटल भी है तो वो भी इसके अंदर मौजूद है. नेम ऑफ द ऑथर, जिसने वो लिखी है रिपोर्ट. नेम ऑफ द अथॉरिटी फॉर होम द रिपोर्ट वाज रिटन, जिसके लिए लिखी गई है. इसमें अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का थीसिस लिखेंगे तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, Akmal Javed, for example, and then in fulfillment of the requirement of MPhil degree for in
the Department of English Language and Literature. उसमें आप name of the authority for whom the report was written लिखेंगे. Finally, contract, project और job number भी अपने लिखेंगे कि आप कौन हैं. हमारे केस में students अपना roll number और batch number लिखते हैं 2013 से 15 for example. So these are the things which are actually given there. And finally, approvals, distribution list, etc., etc.